Good morning, students. So in the last lecture we studied about shape and size of bacteria and flagella and its composition. Then we discussed about gram positive and gram negative bacteria. So today in this lecture of kingdom Monera we would discuss about respiration and mode of nutrition in bacteria or in kingdom Monera. So first of all, respiration. So what is respiration? Whenever we talk about respiration, we should know that respiration is all about catabolic process. You might have heard about metabolic processes, which further are categorized into anabolic processes and catabolic processes. So when an organism starts digesting food and converts that food into energy for its various activities, all these processes are taken place with the help of catabolic processes. Means complex मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना. से फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, ओके, और मोनोसैकेराइड्स, और द कन्वर्जन ऑफ proteins into amino acids. So similarly, what is respiration? Respiration is all about catabolic process to convert complex substances into simpler substances in order to get energy for various activities in case of microorganisms or in case of higher animals and plants. So respiration is of two types on the basis of conditions. It is either aerobic respiration or anaerobic respiration. Aerobic means when respiration or respiratory process occurs in the presence of oxygen. जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उसमें जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो रेस्पिरेशन प्रोसेस चले या हो तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, सो रेस्पिरेशन प्रोसेस, व्हेन रेस्पिरेटरी प्रोसेस occurs in the presence of oxygen, it is known as aerobic respiration. When oxygen is absent, when there is no oxygen and still respiratory process is going on, that process is known as anaerobic respiration. So let's come to the aerobic respiration in the presence of oxygen. In case of microorganisms like in bacteria, this begins with glycolysis. The process glycolysis is to convert one molecule of glucose into pyruvic acid. यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है. वो पायरुविक एसिड आगे फिर फर्दर कहाँ जाएगा? वो into the Krebs cycle, and then into the Krebs cycle. After Krebs cycle ये कहाँ एंटर होगा? In electron transport chain, ETC. Then oxidative phosphorylation. And what is oxidative phosphorylation? In order to prepare ATPs, adenosine triphosphates, which are energy currency of a cell. जैसे ATPs बनेंगे अल्टीमेटली एनर्जी मिलती है एक इंडिविजुअल को, एक ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कोई भी रेप्टाइल, व्हाटएवर. ओके, सो ऑल दिस बिगिंस विद ग्लाइकोलाइसिस, Krebs cycle, electron transport chain, oxidative phosphorylation, then formation of ATPs and then ultimately energy. इन सभी साइकिल्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे 4th यूनिट में. ओके, तो यहाँ आप लोग सिर्फ इतना ही पता कीजिए, आपको ये सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि जब एरोबिक की बात आएगी तो इन सब प्रोसेसेस से होके गुजरना पड़ता है उस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को एटीपीज बनाने के लिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स बनाने के लिए. जैसे एटीपीज बनेंगे दैट मींस की एनर्जी उसको मिल चुकी है टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ओके, ऑन अदर हैंड वी हैव anaerobic respiration. Means there is no oxygen, or in the absence of oxygen
a bacteria respires. So in the absence of oxygen, there could be three types of raw materials like carbohydrates, proteins और dead or decaying matter. तो जब कोई बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है तो वहां पे उसको एक तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करना है, वो उसमें कैपेबल भी है, पर अल्टीमेटली उसे क्या चाहिए? एनर्जी। तो उस एनर्जी के लिए उसको जो भी ऑर्गेनिक मैटर उसको मिलेगा उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सो व्हेन इट कम्स टू कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। यानी अगर वो कार्बोहाइड्रेट का कोई सब्सटेंस है, उसे बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो दैट प्रोसेस इज फर्मेंटेशन। ओके, आई रिपीट, when raw material is carbohydrate, then to break down this raw material carbohydrate into energy, the process is known as fermentation. So fermentation process के थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट जो है जो एज ए रॉ मटेरियल है उसे कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में। ओके, CO2, C2H5OH एंड एनर्जी। आप लोगों ने 10th में पढ़ा है इस चीज के बारे में। अगर प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्यूटेरिफैक्शन। प्यूटेरिफैक्शन, उससे भी आपको बैक्टीरिया को एनर्जी मिलती है। एंड डेड एंड डिकेइंग मैटर को ब्रेक डाउन करके भी एनर्जी को प्राप्त किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। सो देयर आर टू काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस, वेदर एरोबिक और एनारोबिक, in the presence of oxygen or in the absence of oxygen. But what is the ultimate goal of respiration? To get energy. तो यह अल्टीमेट गोल क्या है? एनर्जी को प्राप्त करना। टू गेट एनर्जी, चाहे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको मिले, एरोबिकली मिले, चाहे उसको एनारोबिकली मिले, लेकिन चाहिए क्या एंड में उसको? एनर्जी। इसके अलावा ये जो टर्म्स मैंने नीचे लिखी हैं ये आपको हमेशा पढ़ने को मिलेंगे। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। जब भी आप आगे पढ़ोगे आपको ये चीजें मिलेंगे ही सिलेबस में, तो आपको वो अच्छे से कंसेप्ट उनका क्लियर होना चाहिए। लाइक इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, हियर यू कैन सी ऑब्लिगेट एरोब, ऑब्लिगेट एनारोब, फैकल्टेटिव एरोब एंड फैकल्टेटिव एनारोब। यानी ये बात की गई है बैक्टीरिया के बारे में, वो किन कंडीशंस में, उनकी नेचर क्या है, किन कंडीशंस में वो काम करते हैं। क्या वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं और क्या वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं। सो अगर ये टर्म लिखी हो, व्हाट इज ऑब्लिगेट एरोब? इन केस ऑफ ऑब्लिगेट एरोब, ऑक्सीजन इज मस्ट। व्हाट इज द कंडीशन? ऑक्सीजन इज मस्ट टू रेस्पायर। ठीक है, so in order to achieve this respiratory process or to get energy, oxygen is must, or that bacteria will respire only in the presence of oxygen. कहाँ पे? In obligate aerobe. In obligate anaerobe, just opposite to it, that oxygen will respire only in the absence of oxygen in case of obligate and aerobe. ठीक है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट है। बट यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फैकल्टेटिव एरोब, ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग है। फैकल्टेटिव एरोब, जब हम फैकल्टेटिव एरोब लिखते हैं तो जब ये ध्यान दीजिएगा इस टर्म के ऊपर, एरोब, जब फैकल्टेटिव साथ में लिखा है वो साथ में लिखा है एरोब, तो इस एरोब का ऑपोजिट होगा, दैट मींस एरोब, सॉरी एनारोब। सो व्हाट इज फैकल्टेटिव एरोब? दीज बैक्टीरिया आर जनरली एनारोब्स, ये जनरली एनारोब्स होते हैं, बट दे कैन रेस्पायर ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फैकल्टेटिव एरोब के बारे में मैंने क्या बताया? दे आर जनरली एनारोब्स, यानी जनरली वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायर करते हैं, बट दे कैन आल्सो रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, देन लास्ट फैकल्टेटिव एनारोब, तो जैसे आपने यहां पे उसको ऑपोजिट किया था, अब यहां कर दीजिए फैकल्टेटिव एनारोब, दैट मींस दे आर जनरली एरोब्स और एरोबिक। दैट मींस कि इनके फैकल्टेटिव एनारोब्स दे जनरली रेस्पायर in the presence of oxygen,
they are generally aerobes, but they also can respire in the absence of oxygen. So जहां पे एरोब लिखा है उसको आप जनरली एनारोब मान लीजिए, जहां पे एनारोब लिखा है उसको जनरली एरोब मान लीजिए, और साथ साथ में इसकी ऑपोजिट कंडीशन में भी वो काम करेगा. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, हाउ बैक्टीरिया gets energy from various resources aerobically और anaerobically. तो यहाँ पे मेनली आपको फर्मेंटेशन मिलेगी, यूट्रिफिकेशन एंड सिंपल ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेड और डिकेइंग मैटर इन एरोबिकल कंडीशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैश साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, देन एटीपीज एंड एनर्जी. यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसे इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन they do occur in mitochondrial membranes. अब वो माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया, तो ये कहाँ ये चीजें होंगी, ये होंगी इन मेसोसोम्स, इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जहां, क्योंकि जो मेसोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दे एक्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ eukaryotic cell. Okay, so next mode of nutrition. So it is either of two types, it is either autotrophs or heterotrophs. Autotrophs are further categorized into photoautotrophs and chemoautotrophs. Meaning of photoautotrophs, तो इसी से पता चल रहा है, so they can prepare their own food through photosynthetic pigments. Okay, they can use solar energy for food making process. How could they do that? Because they do have pigments to absorb sunlight. Pigments like bacteriochlorophyll, ये आपको याद रखिएगा, pigments like bacteriochlorophyll and bacterioviridin, they do trap sunlight to convert that solar energy into chemical energy in order to prepare food for bacteria, photoautotrophs. लेकिन इस केस में थोड़ा सा स्लाइटली ये डिफरेंट होता है इन प्लांट से. प्लांट में आपने पढ़ा होगा अबाउट लाइट एनर्जी, तो जहां पे जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, तो एंड में आपने पढ़ा होगा कि वहां पे स्प्लिट ऑफ वाटर होता है, स्प्लिटिंग ऑफ H2O, एंड वहां से क्या रिलीज होगा आपका, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. इन केस ऑफ प्लांट्स स्प्लिट वाटर स्प्लिटिंग होती है एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वहां पे रिलीज होता है प्लांट्स वाले केस में. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग ना होके CO2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और एंड में क्या बनता है हमारे पास, S, सल्फर. तो यहाँ पे सल्फर रिलीज होता है, ना कि ऑक्सीजन. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनऑक्सीजेनिक प्रोसेस. एनऑक्सीजेनिक प्रोसेस क्यों कहा है इसको एनऑक्सीजेनिक, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस या रिलीज नहीं हो रही है जैसे कि प्लांट्स में होता है. बाकी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है विद लेस और मोर कॉम्प्लेक्सिटीज. in case of chemoautotrophs, like for example nitrifying bacteria actually converts ammonia into nitrite or nitrate, which is, you can say, edible forms for plants to be absorbed. So like we have two types of bacteria which are nitrifying bacteria, Nitrosomonas and Nitrococcus. तो ये एज ए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करते हैं. इनका काम क्या है, अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करना. Then we have heterotrophs. हेटेरोट्रॉप्स से मतलब है कि they are dependent on someone for their food and energy. So in heterotrophs they are either saprophytic, means dead and decaying organic matter से एनर्जी लेंगे, like in case of Clostridium. And they are also symbiotic, यानी किसी के साथ एसोसिएशन में ये साथ में रहेंगे ताकि वहां से एनर्जी, फूड एनर्जी मिलती रहे. लाइक इन केस ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इन लेग्यूम प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जहां से वो फूड एंड एनर्जी को वो ड्राइव करता है.
So it's all about respiration and mode of nutrition in Kingdom Monera. Thank you.